Hello students, how are you? Hope all you are well at your home and study. I am Ankit Saxena. Today I will start your second part of chapter 3. Okay students, working with Windows. In the previous video I explained you Windows desktop component of Windows Explorer. Okay, creating a file and saving a file, all these I explained you. Now see next topic, creating a folder. Students, see on the desktop screen, when you open your computer, you see there is a yellow color icon on the desktop screen. You can see in the right side like this. Clear? So this is folder. Folder I explained you, file I explained you before. What is folder? Folder is a collection of many files, and file is a collection of related information. Whatever we type, whatever we draw, we save it as a file in computer memory. क्लियर? कंप्यूटर की मेमोरी में हम उसको फाइल की फॉर्म में सेव करते हैं अपने डेटा को, अपने वर्क को, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर व्हेन वी नीड. जब भी हमें उसकी नीड होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. लाइक इन योर मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है. ओके, सो व्हेन यू क्रिएट video or click photographs, so all that save in that memory card. You can see or watch video after 2 days, 5 days, 3 days, 10 days. Okay, so student, now see folder. What is folder? A folder is a collection of many files. See, we create our file in Paint. Second file we create in a MS Word. Okay, third file we create in MS PowerPoint. So if we want to arrange our file sequentially at a place, so we use folder. We place all these files in a folder, so we can show all our files in at one place. Okay, now see how we create a folder. See students, there are two methods. Number one, in the navigation pane of Windows Explorer, select the drive in which you wish to create a new folder. Okay, then example, select D drive, E drive like this, and then in that pane right click on right click, there is a folder option and your folder create. Okay, second option is, students, if you want to create folder on the desktop, so what do you do? right click on the desktop. Okay, right click करेंगे desktop पर कहीं भी, a list will come, context menu appears. Okay, in that there is option new. Okay, new, click on new, then a list come. In that, in the top, folder option is there, so select folder. So your folder create on the screen. Okay, येलो कलर का आपका इस तरीके से न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. ओके, see, these are the steps. Select a folder option in the sub menu. folder option पे क्लिक करेंगे, a new folder appears in the right pane. न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपको शो होने लगेगा. टाइप द डिज़ायर्ड नेम.
जहाँ न्यू फोल्डर लिखा हुआ है वहाँ पर यू कैन टाइप योर फोल्डर नेम विच यू वांट। अपने फोल्डर को कोई भी नेम दे सकते हैं एंड देन प्रेस एंटर की। सो योर फोल्डर क्रिएट विद योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, so by this way we can create our folder. Next is opening a file or folder. If we want to open our file, saved file or folder, so what we do? Two steps are there. One is select the desired drive in the navigation pane. Means आपकी फ़ाइल जिस भी ड्राइव में है उस ड्राइव में जाइए, वहाँ पर पहुँचिए। ओके, देन डबल क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट यू विश टू ओपन। और उस फाइल पर या उस फोल्डर पर डबल क्लिक करिए, माउस से डबल क्लिक करिए। ओके, सो आपकी फ़ाइल विल बी ओपन, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर? जैसे लाइक डेस्कटॉप पर पेंट का आइकन है, नोटपैड का है, यू वांट टू ओपन इट, उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, माउस से डबल क्लिक करते हैं ना। सो योर फाइल ओपन, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। सेम दैट। क्लियर? सो ऐसे अपनी फ़ाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट सी रीनेमिंग ए फाइल। रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ आवर फाइल। वी कैन चेंज नेम ऑफ आवर फाइल। हम अपनी फ़ाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं और फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। हाउ वी डू इट, कैसे करेंगे? सी चेंजिंग द करंट नेम ऑफ ए फाइल और ए फोल्डर टू ए न्यू वन इज़ कॉल्ड रीनेमिंग। रीनेम, ओके, रीनेम, नेम चेंज करना। हाउ वी डू इट? सी इन द राइट पेन सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर। उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, ए लिस्ट विल कम, एक लिस्ट आएगी। इन दैट देयर इज़ ऑप्शन रीनेम, उसमें आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करिए लेफ़्ट बटन दबा के। ओके, तब जहाँ पर आपका वो है नाम, पुराना फाइल या फोल्डर का नेम लिखा है, उसके पास ही वो हाईलाइट हो जाएगा और कर्सर आ जाएगा उसके पास। अब बैक स्पेस से आप रफ कर दीजिए उस नेम को एंड टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। ओके, और न्यू नेम टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो आपका फाइल का नेम और फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा। क्लियर? सी ये दिखा रखा है, ये डब्लू मीन्स MS वर्ड की फ़ाइल थी, DOC doc1 से। हमने इस पर राइट क्लिक किया, लिस्ट आई, उसमें रीनेम पे क्लिक किया। ओके, तो इस तरीके ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया ये, और बैक स्पेस से रफ करके हमने न्यू नेम दे दिया जैसे माई न्यू फाइल। सो सी नेम चेंज हो गया हमारी फाइल का। क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन चेंज द नेम ऑफ आवर फाइल एंड फोल्डर। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट सी डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर। हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं विच इज़ नॉट इन यूज़, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, वो स्पेस घेर रही है बेकार में, मेमोरी स्पेस कंप्यूटर में। सो हम वी कैन डिलीट इट, हम उसको डिलीट कर सकते हैं फाइल या फोल्डर को। हाउ वी डू इट? सी सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू विश टू डिलीट। उस फाइल या फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे, ओके, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। देन ऑन द टूल बार क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन। इसमें ऊपर देखिए लेफ्ट राइट साइड में टूल बार में ऑर्गेनाइज का ये ऑप्शन दिखेगा आपको, ऑर्गेनाइज। ओके, इस पर क्लिक करना। सो आपको लिस्ट आएगी, उसमें लिस्ट में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा ये। क्लियर? देन क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, सो योर फाइल विल डिलीट। वो आपसे एक बार कंफर्मेशन करेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फोल्डर टू रिसाइकिल बिन। फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो आप यस पर क्लिक कर देंगे तो योर फाइल विल डिलीट। देयर इज़ वन सेकंड ऑप्शन, एक और ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर।
उस फाइल या फोल्डर को क्लिक करिए, ओके, सेलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक, और राइट क्लिक, उस पर राइट क्लिक करिए, एक लिस्ट आएगी उसमें डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर डिलीट कर दीजिए, तो वो फाइल सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, वन ऑप्शन इज़ मोर, उस फाइल पे क्लिक करिए, ओके, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। उस फाइल पे क्लिक करा हमने माउस से लेफ़्ट क्लिक, और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी हमने, डिलीट की होती है कीबोर्ड में, तो भी हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन डिलीट आवर फाइल, इट गोज टू द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन में हमारी फाइल चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, सी द सेलेक्टेड और फाइल और फोल्डर डिलीटेड फ्रॉम इट्स लोकेशन एंड मूव टू द रिसाइकिल बिन। ओके, recycle bin, what is recycle bin? Recycle bin is just like a dustbin, the things which you do not want or which is not in use you throw it in dustbin, same as it is, आपकी फाइल जो भी आप डिलीट करेंगे वो आपकी उसमें रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ओके, इफ़ यू वांट इट अगेन, अगर आप उसको दोबारा चाहते हैं फाइल को, सो यू कैन टेक इट, आप उसको ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रीस्टोरिंग ए फाइल और फोल्डर। ओके, रीस्टोरिंग ए फाइल और फोल्डर, ए डिलीटेड फाइल ऑब्लिक फोल्डर कैन बी रीस्टोर्ड, विच मीन्स इट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। ओके, कंप्यूटर सिस्टम हमें एक ऑप्शन देता है, एक चांस देता है कि हमसे फ़ाइल डिलीट हो गई, धोखे से हो गई, चलो हमने कर दी। ओके, आफ्टर 2 days 3 days वी वांट इट अगेन, हम उसको दोबारा चाहते हैं, उस फाइल को देखना, उसमें वर्क करना, तो हम रिसाइकिल बिन में होती है वो हमारी, रिसाइकिल बिन का फोल्डर होता है, डेस्कटॉप पर ही होता है, देखना, तो उस पर क्लिक करके वहाँ से उस फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सी, ऑन द डेस्कटॉप डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन। ओके, डबल क्लिक करेंगे रिसाइकिल बिन आइकन पर, सो योर रिसाइकिल बिन आइकन ओपन। ओके, रिसाइकिल बिन का आइकन आपका ओपन हो जाएगा। देन सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी रीस्टोर्ड, उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करो जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हो। ओके, देन क्लिक ऑन रीस्टोर, रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल रिसाइकिल बिन आइकन से अपनी उसी प्लेस पर पहुंच जाएगी जहां वो थी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लियर? और वन ऑप्शन इज आल्सो देयर, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल, उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, सी हेयर लाइक दिस। ओके, एंड देन सेलेक्ट रीस्टोर, रीस्टोर सेलेक्ट करके वो हमारी फाइल वहाँ पहुँच जाएगी आपकी। ठीक है, वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, क्लिक ऑन द एम्प्टी रिसाइकिल बिन बटन ऑन द टूल बार टू डिलीट ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। वंस ए फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन इट कैन नेवर बी स्टोर्ड। ओके, अगर आपने उस फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी कंप्यूटर सिस्टम से, फिर आपको वो नहीं मिल सकती। क्लियर? तो ये एक ऑप्शन है इसमें, कंप्यूटर में अगर आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, सी कॉपिंग और मूविंग ए फाइल और फोल्डर। मीन्स हम अपनी फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज डिज़ायर्ड। ओके, मीन्स लाइक हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी, ओके, अब उस फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके किसी
सेकंड पर्सन के नाम से उसी को सेव भी कर सकते हैं, तो उस फाइल की कॉपी हो जाएगी। ओके। और मूविंग उसे वहाँ, इफ़ वी वांट if we want that file remain at its original location as well as place on new location, so we copy the file, okay, and place it to the another location. This option is called copy paste, okay. See steps to copy oblique move a file. सेलेक्ट द फाइल, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक किया, उस पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। फिर उस ड्राइव को ओपन करिए जिसमें भी आपको फाइल ले जानी है, वहाँ पर राइट क्लिक करिए, उसमें पेस्ट का ऑप्शन आएगा, ओके, वहाँ पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सी कॉपी, ओके, देन पेस्ट ऑप्शन, clear. So by this your file will be copied to the new location as well as it remain its original location. जहाँ वो फाइल थी वो वहाँ भी रहेगी और न्यू प्लेस पर भी पहुँच जाएगी। क्लियर। तो दिस इज कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कॉपी करना, फाइल को मूव करना। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, वन थिंग मोर, if you want to delete file from original location and place to new location, अगर जहाँ फाइल है आपकी वहाँ से तो आप डिलीट करना चाहते हैं और न्यू प्लेस पर ले जाना चाहते हैं, ओके, सो व्हाट यू डू, यू क्लिक ऑन कट ऑप्शन। जब आप उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो ये जो लिस्ट आती है उसमें ही कट का ऑप्शन भी होता है, ओके, सी हेयर कट, okay, so click on cut option, then click on paste option, here paste option at the new place, so your file will delete from the original location and move to the new location. This is cut paste. Clear. Copy paste and cut paste, both are different. Clear students. लास्ट टॉपिक स्टूडेंट, सी सर्चिंग फाइल और फोल्डर। टू सर्च फॉर एनी फाइल और फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। मीन्स आपने कोई फाइल अपनी क्रिएट करी, फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, और किसी भी ड्राइव में आपने सेव कर दिया, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, और आप उसे चाहते हो कि वो ओपन हो जाए, मिल जाए हमें, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, सर्च कर रहे हैं आप, नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं। सो इन कंप्यूटर देयर इज़ ए ऑप्शन सर्च। सी व्हेन यू क्लिक स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहीं एक सर्च बॉक्स आता है लेफ़्ट साइड में, सी ये रहा, ओके, इसमें उस फाइल का नेम टाइप कर दो जिस नाम से सेव की थी आपने फाइल या फोल्डर क्रिएट करा था, और सर्च बटन पे क्लिक कर दो। सो कंप्यूटर विल सर्च योर फाइल इन ऑल ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, सब में सर्च करेगा आपकी फ़ाइल को। इफ़ ही फाउंड योर फाइल, अगर आपकी फाइल उसे शो हो जाती है, मिल जाती है, तो इट विल शो यू ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो कर देगा, ये रही आपकी फ़ाइल, देखिए इस ड्राइव में यहाँ पर पड़ी है, ओके। और अगर नहीं मिलेगी, इफ़ नॉट फाउंड देन नो फाइल फाउंड डायलॉग बॉक्स कम ऑन मॉनिटर स्क्रीन, तो नो फाइल फाउंड का डायलॉग बॉक्स शो कर देगा कि भाई कोई फाइल, इस नाम की कोई फाइल नहीं है। सो व्हाट मे बी हैपन, मे बी फाइल डिलीटेड और फोल्डर डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपकी फ़ाइल या फोल्डर वो नहीं मिलती तो इसका मतलब इट मीन्स आपकी फ़ाइल या फोल्डर को किसी ने डिलीट कर दिया है कंप्यूटर की मेमोरी से। जब वो उसमें है ही नहीं तो फिर हाउ वी गेट इट, हमें कैसे मिलेगी वो। क्लियर। तो दिस इज सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर। ओके स्टूडेंट्स, वॉच वीडियो केयरफुली, रीड चैप्टर, ओके, रीड चैप्टर
your chapter complete. Next time I will give you work of this chapter. Okay students, have a nice day.